Hello students, we are now going to start the second class of branch. I have already discussed regarding the branch and its varieties. There are in total two types of branches, online, that is inland branch and foreign branch. Inland branch means the branch situated in India and head office is also in India. The inland branch is again of two types, that is your dependent branch and independent branch. The dependent branch always depend on the head office. The independent branch has got a separate trial. So all these things we have already discussed. I have also explained you how to do the problem through opening the branch account. And this is a question we are going to solve. Treatment of abnormal loss, that means in this account, this question there is a abnormal loss. Those who are going through the class, online class, you take it as a screenshot, and those who are depending on the channel, please take down all these questions, because unless you know the question, nothing can be understood so properly. So friends, ACE Limited maintain a branch at Calcutta to which it sent goods at cost plus 25%. अगर कॉस्ट मेरा 100 होता है, कॉस्ट 100, तो प्रॉफिट कितना ना 25, प्रॉफिट इज द 25, तो इनवॉइस प्राइस 125. सो अगर मेरा कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट अगर मेरा 100, प्रॉफिट इज 25, it comes to 125, which is the invoice price, and on 125 the profit is 25. so loading कितना, लोडिंग आपका होगा 25 divided by 125. this is the loading on invoice price. This is the loading on invoice price. Right? Calcutta branch sell goods both in cash and credit. All collection and cash sales are directly deposited to head office. That means जो भी कलेक्शन होता है, कैश सेल होता है, वो हेड ऑफिस में जमा हो जाता है. That means this is a dependent branch. All expenses are paid by head office directly. So जो भी कलेक्शन होता है वो हेड ऑफिस के पास जाता है, और जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो भी हेड ऑफिस खर्चा करते हैं. That means all activities are controlled or centered to the head office. So let us prepare a Calcutta branch account in the books of head office. Please take down the question. Let us see again, that is balance, that is of stock 30,000, data 40,000, transaction during the year, goods sent to branch, ये कॉस्ट में है, goods returned at invoice price, return by data, cash sale, credit sale, discount allowed, bad debt, abnormal loss of invoice price of goods. So friends, you can take down the question, you can write the question, and if you go through the question, the problem will not be difficult.
This is discount allowed, bad debt, abnormal loss of goods, and this is the check sent by head office. ब्रांच का जो भी एक्सपेंडिचर होगा, इसलिए हेड ऑफिस ने पैसा भेजता है किसके लिए ना, हेड ऑफिस ये सारा पैसा ब्रांच का खर्चा के लिए भेज देता है। तो रेंट अकाउंट, रेंट, सैलरी, पेटी एक्सपेंसेस, ये सारा चीज है। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है और स्टॉक है, राइट फ्रेंड्स। इधर एक चीज वो लोग नहीं दिए हैं, मैं पहले से आपको बोल देते हैं। आपको डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया है, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया है, डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिट सेल भी दे दिया, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट भी दे दिया। एक चीज बैलेंसिंग फिगर डेटर अकाउंट का नहीं दिया है, दैट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर, एंड दिस इज ए मिसिंग इंफॉर्मेशन इन दिस प्रॉब्लम, बिकॉज कलेक्शन फ्रॉम डेटर से जो भी कलेक्शन आपका होगा, ऑल सच कलेक्शन विल बी सेंट टू द हेड ऑफिस। इस तरफ रिलेशन, जो भी ब्रांच पैसा मिलेगा वो हेड ऑफिस को दे देगा, और ब्रांच का जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो भी हेड ऑफिस से आ जाएगा। इस तरफ का वेरी गुड एमिकेबल रिलेशन, ठीक है ना। जिस तरह आप पैसा, आप नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, पिताजी को दे देंगे, और पिताजी आपका खर्चा के लिए जो भी एक्सपेंडिचर के लिए पैसा भेज देंगे, बस इसी तरफ का ये रिलेशन से। सो डेटर इतना और स्टॉक प्राइस को भी दे दिया। सो फ्रेंड्स, मिसिंग इंफॉर्मेशन का बारे में बोलते हैं, हमको डेटर से कितना पैसा मिला है ये पता होना चाहिए, और डेटर से पैसा कैसे मिलेगा ना, हम एक डेटर अकाउंट करेंगे, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट, टू फाइंड आउट द मिसिंग इंफॉर्मेशन। हियर द मिसिंग इंफॉर्मेशन इज your collection from data. Please keep it in mind, please keep it in mind. So stock at invoice price भी है, let us go to outstanding rent भी 1000 है। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दिए, आप आपका पास क्वेश्चन को रखिए, और मैं जब सॉल्यूशन अभी करेंगे, आप क्वेश्चन से सॉल्यूशन को पढ़िए, सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग बेटर, एंड only by looking at the solution you cannot understand, you cannot assess the spirit of the problem. So आपको अच्छा से समझ में आएगा if you keep your question with your hand and see the solutions, right? Thanking you. So this is the question, and let us start with the problem solution. So this is solution to the problem, and this is the books of X. This is books of, कंपनी का नाम था S Limited, and we are preparing branch account, and we are going to prepare the Calcutta branch account. Calcutta branch account. This is Calcutta branch account. Friends, this is the date. I should write, पहले में क्या बोले थे आपको फर्स्ट क्लास में, ब्रांच अकाउंट जब बनाएंगे पहले हमको ओपनिंग बैलेंस लिखना है। अगर स्टॉक, डेटर, फिक्स्ड एसेट कुछ भी होता है, उसका ओपनिंग बैलेंस आपका इधर आएगा। सो लेट अस राइट द ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस
brought forward. We can write brought down, right? Then we shall come to stock. Stock is 30,000 and opening debtor is there. आपका डेटर था 40,000. So friends, stock is 30,000 and debtor is 40,000. मैं आपको जब मैं समझाए थे लास्ट क्लास में, ये स्टॉक का ऊपर ये स्टॉक मेरा इनवॉइस प्राइस में है और उसका अंदर जो भी प्रॉफिट इंक्लूड है, इनवॉइस प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट आपका इसका अंदर इंक्लूड है, वी हैव टू टेक द प्रॉफिट टू द ऑपोजिट साइड। अंडरस्टूड? सो दिस इज बाय स्टॉक रिजर्व। This is your profit included in the stock. So 30,000 into 25 by 125. मैं आपको थोड़ा टाइम का आगे बोले थे, कॉस्ट अगर मेरा 100, प्रॉफिट आपका 25, इनवॉइस प्राइस मेरा 125, 125 में 25 प्रॉफिट है, तो मेरा लोडिंग फैक्टर क्या होगा? माय लोडिंग फैक्टर विल बी 25 by 125. दिस इज द लोडिंग फैक्टर, राइट? दिस इज द लोडिंग फैक्टर। सो 30,000 को अगर मैं ये लोडिंग फैक्टर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन द स्टॉक रिजर्व विल कम टू 6,000. ओके, सो दिस इज माय स्टॉक रिजर्व. देन डेटर. फ्रेंड्स, डेटर का ऊपर कोई स्टॉक, कोई लोडिंग नहीं होता है. क्यों? ना, डेटर मीन्स द आइटम हैज बीन सोल्ड, प्रॉफिट रियलाइज्ड. प्रॉफिट अगर रियलाइज हो जाता है तो उसमें कोई भी लोडिंग नहीं होगा. सो फ्रेंड्स, डेटर का ऊपर लोडिंग नहीं होता है. स्टॉक सेल नहीं हुआ है, इसलिए स्टॉक का ऊपर हम लोग लोडिंग करते हैं, क्योंकि स्टॉक प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द स्टॉक, जो स्टॉक का अंदर जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है. रियलाइज मीन्स सेल नहीं हुआ है. व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट ओनली रियलाइज. अपने का पास अपना स्टॉक रखने से थोड़ी प्रॉफिट हो जाता है, राइट? अगर आपका चीज का दाम होता है 10 रुपया, आप उसको बोलेंगे कि उसका सेल दाम 12 रुपया, क्या तो आप लोग को 2 रुपया प्रॉफिट मिल जाएगा. आप अगर किसी को सेल करते हैं तो प्रॉफिट मिलता है. सो फ्रेंड्स, प्रॉफिट रियलाइज ऑन सेल, इसलिए डेटर का ऊपर कोई लोडिंग नहीं होगा. दिस इज द लॉजिक, राइट? और डेटर का ओपनिंग भी कर दिए. टू गुड्स सेंट टू ब्रांच. ये दोनों एंट्री, दोनों जो चीज, ये ओपनिंग डेट में होगा, क्योंकि दीज आर ओपनिंग बैलेंस. और सारा चीज मेरा क्लोजिंग बैलेंस में, क्लोजिंग डेट में होगा. 1/4/96, इसका क्लोजिंग डेट आपका 97. टू गुड्स सेंट टू ब्रांच
देखिए क्वेश्चन में बोला है कि गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट, हमको इनवॉइस प्राइस में करना है क्योंकि स्टॉक इनवॉइस प्राइस में है, इसलिए जो भी गुड्स वो लोग भेजेगा दैट विल बी सेंट एट इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट दे दिया आपको, इनवॉइस प्राइस कैसे निकालना है, फिर मैं वही चीज बोलेंगे। आपका कॉस्ट 100, प्रॉफिट बोला है 25, आपका इनवॉइस प्राइस 125, आपको कॉस्ट दे दिया, इनवॉइस प्राइस आपको जरूरी है, आपको कॉस्ट दे दिया, वो लोग आपको कॉस्ट दे दिया और बोलता है कि आप इनवॉइस प्राइस निकालिए। कैसे करेंगे, जो चाहिए उसको ऊपर में रखेंगे ना, क्या चाहिए आपको, इनवॉइस प्राइस, तो ऊपर में रख दीजिए, और क्या चाहिए आपको, कॉस्ट नीचे ले लीजिए क्योंकि कॉस्ट आपको दिया है। उसी तरह आप इनवॉइस कॉस्ट देने से आप इनवॉइस प्राइस निकाल सकते हैं। देख लीजिए, जे कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट 25, 125, हमको 125 चाहिए, 100 दिया है, सो जो जरूरी है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे ऊपर में, और जो दिया है उसको नीचे रखेंगे 100। सो फ्रेंड्स, अगर मैं 1,40,000 इंटू 125/100 कर लेते हैं तो ये आपका आएगा 1,40,000 इंटू 1,75,000 आपका आ जाएगा। सो फ्रेंड्स 1,75,000 मैं आपको बोले थे अगर ये इनवॉइस प्राइस में है तो इधर भी लोडिंग लेना है, क्योंकि इनवॉइस प्राइस में जितना प्रॉफिट है उसको फिर हम लोग निकाल देंगे। सो 31,397 आप कंसाइनमेंट पढ़े, कंसाइनमेंट में टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस में होता था, तो उल्टा साइड में करते थे, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग ले लेते थे। सो इन दिस वे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,75,000 बाय गुड्स सेंट to branch 1,75,000 into आपका 25/125, this comes to 35,000। और दूसरा भी उपाय में आप कर सकते हैं, 1,75,000 से आपका कॉस्ट माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 1,35,000। ये भी आप इस तरफ भी कर सकते हैं, इस तरफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और ये क्या क्या, डेट विल बी सेम, डेट विल ऑलवेज बी सेम, द क्लोजिंग डेट। और हेड ऑफिस ब्रांच को रेंट, सैलरी, पेटी एक्सपेंस, इसलिए कुछ पैसा भेजा है, छोटा मोटा खर्चा के लिए हेड ऑफिस ब्रांच को पैसा कुछ भेज दिया, तो क्या करेंगे, टू बैंक। मान लीजिए कि हेड ऑफिस थोड़ा दूर में है तो कैश क्या भेजेगा, आजकल तो सब बैंक में पैसा रेमिटेंस हो जाता है, इसलिए मैं कन्वेंशनली लिखे हैं बैंक। अगर आप कैश लिख देंगे तो गलती नहीं होगा। और बैंक लिख के क्या क्या चीज किसके लिए पैसा भेजा है ना, रेंट, सैलरी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। आप क्वेश्चन को देखो,
रेंट, कितना रेंट के लिए भेजा है ना 4000 हेड ऑफिस सेंट टू ब्रांच फॉर रेंट। और सैलरी ये भी आपका 6000। और पेटी एक्सपेंसेस ये आपका 2000, राइट। ये टोटल हेड ऑफिस ने उसको भेज दिया। नाउ द थिंग इज दैट द गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, क्या हो गया देखिए, ये हेड ऑफिस है और ये ब्रांच है। हेड ऑफिस गुड्स ब्रांच को 1,75,000 का गुड्स देगा। शायद कुछ गुड्स गलती है या कुछ भी है, एक्सेस हो गया, कुछ भी है कारण से ब्रांच गुड्स को रिटर्न कर देता है। सो फ्रेंड्स, जब गुड्स सेंड किया तब कलकत्ता ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंड। अभी क्या करेगा, उल्टा कर देना है एंट्री को, बस भेजने का टाइम में कलकत्ता ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंड। और जब गुड्स मेरे को वापस आएगा आप थोड़ा उल्टा कर दीजिए, क्या होगा ना, गुड्स सेंड डेबिट टू कलकत्ता ब्रांच। चलिए, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिटर्न, इसको लिख देते हैं आपका रिटर्न 10,000। फ्रेंड्स, ये 10,000 मेरा इनवॉइस प्राइस में होता है। सो इधर इनवॉइस प्राइस लिए और एक बार देखिए, इधर में इनवॉइस प्राइस लिए हैं तो लोडिंग क्रेडिट साइड में, डेबिट में इनवॉइस प्राइस तो क्रेडिट साइड में लोडिंग। फिर देखो इधर स्टॉक इनवॉइस प्राइस में है तो इधर लोडिंग। रिटर्न ऑफ द गुड्स जो बोलता है ये क्रेडिट साइड में है तो उसका लोडिंग डेबिट में होगा। कहाँ होगा ये लोडिंग, आपका डेबिट में हो जाएगा लोडिंग उल्टा साइड में होता है। क्यों ना, प्रॉफिट को निकाल देना चाहिए, प्रॉफिट को निकालने से मैं कॉस्ट का पास पहुंच जाएंगे। जिस तरह ये होता है ना, मान लीजिए कि एक आदमी ने 260, इसका बाद उसका बॉडी है, एक प्रॉफिट है, ये ऊपर कव है, हम लोग पढ़ते हैं उस तरफ, फिर अंदर में। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को अगर में निकाल देते हैं तो आप कॉस्ट का पास पहुंच जाओगे। इसलिए इनवॉइस प्राइस से लोडिंग निकाल देते हैं तो फिर में कॉस्ट का पास आ जाएगा। ये इनवॉइस प्राइस है तो मैं इधर लिखते हैं, स्पेस थोड़ा कम है नीचे, 31,397 में टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये आपका में लोडिंग में जाते हैं 10,000 इंटू 25/125। मैं आपको कितना बार बोले हैं लोडिंग फैक्टर, 25/125। सो ये लोडिंग फैक्टर आपका 2000, ठीक है, राइट। ये 10,000 और उसका ऊपर जो वो इनवॉइस प्राइस में है और उसका ऊपर जो लोडिंग अब मैं इधर ले लिया, राइट।
The idea is to convert it to the cost. Then another one thing is there, that is a abnormal loss, and the abnormal loss was 8,000. Abnormal loss was 8,000. So friends, जो एबनॉर्मल लॉस है मैं इधर लिख देते हैं आपको, बाई एबनॉर्मल लॉस 8,000. Abnormal loss, this 8,000 is the invoice price, right? This 8,000 is the invoice price. Friends, क्या करेंगे अभी, मैं इधर इनवॉइस प्राइस लिए तो लोडिंग फिर डेबिट साइड में आएगा, तो एबनॉर्मल लॉस आपका लोडिंग कितना, 8,000 into 25 by 125. So this comes to 1,600. So इसका भी लोडिंग में बना दिए. So this is our loading on your abnormal loss. Friends, अभी मेरे को देखना है कि कैश कितना है, बाई कैश हेड ऑफिस को भेजेंगे. एक तो होता है मेरा कैश सेल्स, वो लोग आपको कैश सेल दे दिया, कैश सेल 30,000, बट डेटर से आपको कितना कैश मिला है, ये 30,000 आपका क्वेश्चन में है. सो नो प्रॉब्लम, डेटर से कितना कैश मिला है हम लोग एक मेमोरेंडम डेटर अकाउंट करेंगे, और मिसिंग इंफॉर्मेशन मेरा रहेगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर. लेट अस सी हाउ आई एम डूइंग इट. मेमोरेंडम डेटर अकाउंट, memorandum debtors account. Why we are using the word memorandum? Because we want to find out some missing information, and to find out some missing information, therefore we are using a memorandum data. We can also prepare a statement to find out the cash collection from debtors. In this case, just prepare a debtor account to balance BD. Just prepare a debtor account 40,000 by balance closing वाला, by balance CD closing debtor is your, please look at the question, closing debtor is 45,000. This is 45,000 is the closing debtor. $45,000 is the closing debtor. Now, two sales, आपका credit sale they have given you, क्वेश्चन में है आपका 1,20,000, और by return inward is आपका 3,000, और bad debt, by bad debt
right? By bad debt 2000, by discount allowed, आपका 3000. ओके फ्रेंड्स, ये जो ट्रेडिंग जो ब्रांच अकाउंट होता है, ब्रांच अकाउंट में हम लोग क्या ना 40,000 ओपनिंग बैलेंस लिए, 45,000 वी हैव टू टेक द क्लोजिंग बैलेंस, और रिटर्न इनवार्ड बैड डेट डिस्काउंट ये सब हम लोग नहीं लेते हैं। और इसका बैलेंसिंग फिगर में थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, बाय बैलेंस CD 45,000, एंड आपका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, this will be the cash realized from the debtor. Let us add it. If we add it, it is 1,60,000. If we add it, it is the debit side is 1,60,000 and credit side में by cash. This is balancing figure, and this balancing figure is debit minus credit. So we have added all the things here. It comes to 1 lakh, 2,07,000. It comes to 1,07,000. देखिए, this will be 1,60,000 minus 853. So 1,07,000 is the balancing figure. So this is the cash I received from the debtor. This is the cash I received from the debtor. Right? So if we take this cash here, that is collection from debtor, आपका 1,07,000. So collection from debtor 1,07,000. So if we add both the things, it comes to 1,37,000. So friends, by preparing this memorandum debtors account, as we have done it here, the word memorandum we have used to find out the missing information. कोई गलती है वो भी हो जाएगा, या कोई इंफॉर्मेशन लैगिंग है, नहीं दिया है इंफॉर्मेशन, तो इसको निकालने के लिए हम लोग मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं. मेमोरेंडम मीन्स इट इज ए स्टेटमेंट. सो टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस ले लिए, क्रेडिट सेल आपको दिया है, और ये सारा चीज मेनली ये देखिए, दिस थिंग्स रिटर्न इनवार्ड, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, ये आपका ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा. ब्रांच अकाउंट में आपका ओपनिंग, क्लोजिंग और कैश कलेक्शन आएगा, ये क्रेडिट सेल भी नहीं आएगा. सो अल्टीमेटली क्रेडिट सेल माइनस दिस इज द फिगर ऑफ ओपनिंग, क्लोजिंग एंड कैश का नेट. सो फ्रेंड्स, ये देखिए बैलेंस ओपनिंग लिए, क्लोजिंग लिए और कलेक्शन फ्रॉम डेटर लेना है. और जो रिटर्न इनवार्ड, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, दिस विल नॉट कम इन योर ब्रांच अकाउंट. So this is the दूसरा जो आइटम है आपका, वो क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक स्पेस नहीं होता है,
I am doing the things here. Let me do it here. I am continuing here. So this is by balance CD क्लोजिंग स्टॉक, इसमें आपका स्टॉक आता है, स्टॉक इज योर क्लोजिंग स्टॉक इज योर 40,000, राइट। ये भी इनवॉइस प्राइस में है 40,000। और डेटर, क्लोजिंग डेटर इज योर, just now we have done, that is 45,000 closing debtor is your 45,000, right। ये आपका स्टॉक रिजर्व था 6,000, right। So this was a closing stock, stock was 40,000, debtor 45,000। we have to, ये इनवॉइस प्राइस में है, this is in invoice price, we have to take this to stock reserve, carried down। आपका 40,000 into 25 by 125, this will be 8,000। so 8,000 is your stock reserve, right। and there is a abnormal loss of outstanding rent, to outstanding rent carried down। outstanding rent is your 1,000, that is outstanding rent 1,000। just check it out, stock is 30,000, opening stock, debtor, and this is 1,75,000, उसका लोडिंग भी इधर 35,000। और ये जो गुड्स सेंड, गुड्स रिटर्न्ड बाय द ब्रांच, ये आपका 10,000, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 10,000, इसका लोडिंग भी हो गया, राइट। कैश सेल, कलेक्शन, एबनॉर्मल लॉस, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, वो भी हो गया। सो नथिंग इज लेफ्ट आउट। इफ वी एड द टोटल वन, and if we, the total one credit side will be, आपका आप खाता में जो किए है ना उसको देखिए, this will be your 2,81,000। so 2,81,000 is the credit side, and credit minus debit, this will also be 2,81,000, and credit minus debit to general profit and loss account। so जो भी प्रॉफिट होगा, this is general profit and loss account 11,400। this is our balancing figure, this is our balancing figure, okay। so balancing figure is our general profit and loss account, and the profit will be transferred from branch to the head office। so this is the profit made by the branch out of the transactions which have been given to us। so this is the
profit which have been given. I think you all have understood this, right? Let us come to a concept. Concept number 1. Head office sent goods to branch rupees 60,000 at a profit of 25% on cost. Head office sent goods to branch costing rupees 60,000 at a profit of 25% on cost. The branch sells goods to the customers. The branch sells goods to the customers, and the closing stock at the year end was 12,000. Find the stock reserve. Head office sent goods to branch costing 60,000 at a profit of 25% on cost. फ्रेंड्स, अगर कॉस्ट मेरा 100 होता है तो 25 मेरा प्रॉफिट है, इनवॉइस प्राइस मेरा 125, एंड मैं बोले थे आपको कि 125 इनवॉइस प्राइस लोडिंग 25/125 इज द लोडिंग फैक्टर। और बोलता है कि ब्रांच का अपना कोई परचेस है, ये नहीं बोला है, इसलिए मैं सोच लेते हैं कि ब्रांच का जो भी गुड्स क्लोजिंग स्टॉक है वो सारा गुड्स हेड ऑफिस ने भेजा है। ब्रांच का जो भी क्लोजिंग स्टॉक है इसका सारा गुड्स वो ब्रांच ने ही, हेड ऑफिस ने ही भेजा है। सो क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज आपका 12,000. So closing stock at the end of the year is 12,000, right? Now you come to the stock reserve. So stock reserve is equal to आपका 12,000 year end stock और उसमें 25/125, this will be 2,400. फ्रेंड्स, ये स्टॉक रिजर्व कैसे आता है उसका ऊपर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल्स वी हैव डन, राइट? सो स्टॉक रिजर्व विल बी 25/125, that is
2400, and this is the profit made by the head office on sending the goods. This is your stock reserve. Friends, closing stock at the year end was 12,000 at invoice price. क्योंकि कॉस्ट अगर होगा ये 12,000 तब तो आपका स्टॉक रिजर्व ये करना जरूरी नहीं, अदरवाइज मैं कॉस्ट को इनवॉइस प्राइस करके स्टॉक रिजर्व कर सकते हैं, बट ये जो 12,000 दिस इज एज इनवॉइस प्राइस, दिस इज इनवॉइस प्राइस। सो इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड है, इसी प्रॉफिट को मैं निकाल दिया, दैट इज योर स्टॉक रिजर्व। Then come to the concept number 2. Head office sent goods to branch at cost plus 25%. During the year, head office sent goods to branch for rupees 60,000. Branch also purchased goods. Branch also purchased goods rupees 40,000. Stock at branch rupees 10,000. Calculate the stock reserve. So friends, ये जो goods sent होता है, this is 60,000 worth of goods are sent by your 60,000 goods have been sent by branch to the head office. मैं आपको एक छोटा डायग्राम करते हैं. This is my head office and this is my branch. Head office sent 60,000 of goods, ये हेड ऑफिस ने भेजा है. ब्रांच खुद ही परचेस किया 40,000 वर्थ ऑफ गुड्स. सो फ्रेंड्स, ये जो 40,000 ये तो ब्रांच का कॉस्ट है, ये भी ब्रांच का कॉस्ट है, बट इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, इसमें कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये ब्रांच खुद परचेस किया. सो इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है. जो हेड ऑफिस इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, जो इंटर ब्रांच इंटर हेड ऑफिस ब्रांच जो ट्रांजैक्शन, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, राइट? सो बिकॉज द हेड ऑफिस एंड द ब्रांच आर वन एंड सेम, today their branch is making profit or loss, tomorrow their branch profit or loss will be come together with the head office. So they are one and same, and these goods have been purchased from outside. So this is actually the cost. It does not need any reserve, but इसमें रिजर्व आपको करना चाहिए. बट ये बोलता है कि मेरा जो स्टॉक है, ब्रांच का जो स्टॉक है, ये ब्रांच का स्टॉक जो है, दिस इज 10,000. But out of this 10,000 friends,
ये आपका हेड ऑफिस कितना गुड्स भेजा है, ब्रांच कितना, ओन परचेस गुड्स कितना, ये आपको नहीं बोला है। ओन परचेस गुड्स का ऊपर कोई लोडिंग नहीं होगा, जो हेड ऑफिस भेजेगा उसका ऊपर आपका लोडिंग होगा। सो फ्रेंड्स, पहले तो 10,000 में मेरा स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 विल बी 10,000 गुड्स जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें कितना गुड्स ट्रांसफर है वो निकालना चाहिए। कितना गुड्स ओन परचेस, ये हमको जरूरी नहीं, क्योंकि ओन परचेस गुड्स का ऊपर कोई रिजर्व नहीं होगा फ्रेंड्स। इसलिए मेरा स्टेप 1 में मैं निकालेंगे ट्रांसफर गुड्स इन द स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स कितना ट्रांसफर है ना, 10,000 फ्रेंड्स। टोटल गुड्स अगर 1 लाख होता है, 60 प्लस 40 1 लाख, इसमें 60,000 इज द ट्रांसफर गुड्स। सो 1 लाख टोटल होता है आपका यूनिटरी मेथड, 60,000 इज द ट्रांसफर गुड्स, और 1 रुपये होता है तो 60,000 बाई आपका 1 लाख। सो 10,000 इंटू 60,000 बाई 1 lakh. So this is the transfer goods. So this transfer goods comes to 6,000. So ये जो 10,000 इस क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें ट्रांसफर गुड्स है 6,000। स्टेप 2 is your stock reserve. Stock reserve is your 6,000 और लोडिंग फैक्टर इज 25 by 125. ये 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. So 25 by 125, this will be our stock reserve. So 1,200 is the stock reserve here. So the step 1, transfer goods in the stock. तो जो स्टॉक है 10,000, उसमें ट्रांसफर गुड्स कितना है, कैसे निकले, और एक बार बोल देते हैं। टोटल गुड्स आपका 60 और 40 1 लाख। 1 लाख में 60,000, 1 में 60 by 1 लाख, और 10,000 में कितना, दिस इज प्योरली यूनिटरी मेथड, सो इट कम्स टू 6,000. When stock reserve on 6,000 is 6,025 by 125, the stock reserve is 1,200. फ्रेंड्स, ये सारा जितना कॉन्सेप्ट है, फिर नेक्स्ट क्लास में वी शैल डू द प्रॉब्लम, आल्सो वी शैल डू द कॉन्सेप्ट। सो आप अगर ये कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट को अगर आप पूरा ठीक से समझ जाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं घर में, तो आपका ये ब्रांच अकाउंट गलती नहीं होगा, राइट। वी विल बी कमिंग विथ अदर प्रॉब्लम्स and that will help you to navigate through the exam. Thank you.